going to try and keep it simple. I'm going to talk about a subject which is very close to my heart. It is my signature program. It's basically about the 10 power performance principles. So why do we need to perform? And I'll try and see if I can switch between a bit of English and Hindi. I have got some interesting shairis for all of you to make your life a little bit more interesting and so that learning is more fun, and all relevant shairis in terms of our own life. So, right. So, so first of all, let's understand why are we talking about performance, and especially at a time in life जहाँ पर हमारे हालात इतने मुश्किल हो रखे हैं, तो हम लोग परफॉर्मेंस की बात ही क्यों कर रहे हैं? और कई लोगों के पास नौकरी का भी प्रॉब्लम है, कई लोग के पास बिजनेस के चैलेंजेस अलग हैं, सो हर प्रकार का प्रॉब्लम है. सो व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस इन दैट केस? बिकॉज whatever your situation in life, whether you're an entrepreneur, whether you're working somewhere, whatever the situation might be, you're a startup, whatever you're doing, it is extremely important that we all are performing by the end of the day. I am also an entrepreneur, so I understand the pain of getting new clients in this point of time, but we have to try. There are existing clients जिनके साथ मुझे अपना रिश्ता बना के रखना है. I have to keep building my relationships. So, but one needs to keep trying all the time. So, and at the end of the day, you've got to perform despite the kind of situation that you find yourself into. So, this is a very important aspect of life. So, we all have to perform, whether we are a family person, whether we are a professional person, whether we are a citizen of this country, we all have to perform. So, and performance is such a thing कि आज अपने अच्छा काम किया तो इसका मतलब नहीं कि कल वो लोग भूल जाते हैं, और आप 2 दिन गलतियां कर सकते हैं तो फिर आगे बढ़ सकते हैं. ऐसा नहीं होता, आपको रोज परफॉर्म करना है. तो फॉर एग्जांपल, हाँ, हम गलतियां करेंगे, हमसे भूल चूक होगी, हम उससे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे. लेकिन the thing to understand is that now let's take an example. Let's take an example from cricket. Uh, I scored a century yesterday. People have already forgotten about that century today. So I have to start all over again. I have to face my first ball and I have to start all over again, and I have to look to score runs again, and again I have to prove myself. So it does not matter whether you have spent 25 years in the industry, whichever industry you are part of, whether it is Bollywood, whether it is cricket, whether it is entrepreneurship, it does not matter, but we all have to perform every single day. Now, can I say that I'm married for the last 25, 30 years and it is okay to be a bad husband or a bad wife today, or a bad mother or a bad father? You have to be a good mother every day. You have to be a good father every day. You have to be a good husband every day. You have to be a good wife every day, and you have to be a good citizen every day. And you also have to be a good colleague every day. You have to be a good friend every day. So performance is something which you have to be doing every day. रोज करना पड़ता है performance. रोज आपसे सवाल पूछे जाएंगे, रोज आपके ऊपर प्रेशर आएगा, रोज आपको झेलना है, रोज सुबह उठना है और रोज काम करना है, और एकदम दिल से काम करना है और बढ़िया काम करना है. सो कैसे करेंगे हम ये काम? क्योंकि आजकल हालात मुश्किल है. जब हालात मुश्किल नहीं थे तभी भी कई लोगों को दिक्कत होती थी अच्छा काम करने में. तो इस वक्त जो हालात हो रखे हैं, हम उन हालातों में भी अच्छा काम कैसे कर सके, ये मैं आपके आज सामने रखूंगा. ऐसे 10 चीजें जो आप कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है. इफ यू डू दीज 10 थिंग्स consistently over a period of time, every day, consistently you keep doing them, it is not a guarantee that you will be able to perform at your peak every day. But if you don't do any of these things, then it is a guarantee that there will not be any performance around it. So I'm going to talk to you about those 10 principles which have helped me a lot in my life to become whatever little success that I have been able to create, and also to inspire a lot of people to become successful in their own lives. The first thing, before I come to the 10 principles, I want to share with all of you is that we are all the time talking about success. We are all the time talking about money. We are talking about performance. But before all this, the most important thing in life is that you have to learn to be happy. हमको खुश रहने को सीखना है. हमको
एक जिंदगी में हंसी लानी है, कुशलता तो लानी है, लेकिन हमारे अंदर हम एक खुशी का माहौल पैदा करना है। हम जो परिवार में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, हमें खुशी का माहौल पैदा करना है। और एक चीज जो मेरे को लाइफ में समझ में आया वो ये है कि जिंदगी में खुश रहने के लिए आपको कोई कारण की जरूरत नहीं पड़ती है। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको बहुत सारे कारणों की जरूरत पड़ती है। आपको कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन खुश रहने के लिए आपको कोई कारण की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली क्या कर दिया है कि वी हैव एक्चुअली मेड हैप्पीनेस वेरी एक्सपेंसिव। हमने उसको किसी न किसी के चीज के साथ, हमने इस हैप्पीनेस को किसी न किसी चीज के साथ जोड़ दिया है। हमने हमने ये कहा कि अगर बिजनेस अच्छा करेगा तो मैं खुश रहूंगा, इतना पैसा कमा लूंगा तो मैं खुश रहूंगा, मेरे को ये प्रमोशन मिल जाएगा तो खुश रहूंगा, इतना बड़ा घर ले लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, इतनी बड़ी गाड़ी मिल जाएगी मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन ये सब आपके आपके अभिलाषाओं से कनेक्टेड है, आपके सक्सेस से कनेक्टेड है, ये आपके हैप्पीनेस से कनेक्टेड नहीं है। Because happiness is in the small things of life and success is in the big things of life. Small things like having a cup of tea with a friend, spending time with family, celebrating the small moments of life. Those are the small things which we have unfortunately made very expensive. So the first thing I want to tell all of you is that if you want to be really successful, I want to share with all of you rather, is that if you want to be successful, the first and foremost thing that you have to keep in mind is you have to learn to be happy. Many people think the day I am successful, I will be happy. It does not work like that. Actually, if you are happy, you will be successful. And if you are happy, that also is success. जब आप खुश रहते हैं, वो अपने आप में कामयाबी है, और जब आप खुश रहेंगे तो आपको कामयाबी जिंदगी में मिलेगी। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। ये आधार है हमारे डिस्कशन का, क्योंकि हम परफॉर्मेंस तो कर लेंगे जिंदगी में, हम बहुत बड़े बड़े परफॉर्मेंसेस कर लेंगे, लेकिन अगर हमको अंदर से रस नहीं है, हम खुश नहीं है, तो उस परफॉर्मेंस का, उस सक्सेस का कोई ज्यादा मतलब नहीं बनता है। एंड ऑफ द डे थोड़े में भी खुश रहने को सीखना चाहिए, बहुत में भी खुश रहने को सीखना चाहिए, और कोई तकलीफ भी आती है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो आनंद या वो खुशी, वो हैप्पीनेस हमको छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज अवर नेचुरल नेचर. So the 10 things that I'm going to talk to you about today, in terms of becoming a great performer. The first is, and these are the 10 P's, as I don't have a presentation because I want to make it, like an interaction, like a talk rather than just running a PowerPoint presentation. So what I request is you could make a note of it. You could write it down on a piece of paper if you want. And you can just make a note of these 10 principles. So the first principle I want to talk to you about is purpose. And these are all 10 P's. I'm going to talk to you about the 10 P's of performance. So the first is purpose. In life, if you want to be successful, if you want to be a performer, the first thing you need to do is that you must have a purpose. जिंदगी में एक उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। हम लोग जो बिजनेस शुरू करते हैं, कई स्टार्टअप्स आते हैं, कई बिजनेस शुरू होते हैं, अगर आपका आधार पैसा बनाना है तो फिर वो अच्छा बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर आपका आधार ये है कि आप जिंदगी में कुछ फर्क लाना चाहते हैं, कुछ लोगों के जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ लोगों के जिंदगी को, इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मेक दिस अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, if you want to solve some social problems with the help of your business model, then that is where the business is really fantastic. That is where your business is really fantastic. But if your business is only to make money, then that is not a great business at all. And we have already seen that people are all the time running after money, are using corrupt mechanisms, and some of them are running away from the country, some of them have run away with the money also. So, and we are indulging in all kinds of practices which are not acceptable. So Henry Ford, who was a great American businessman, and he created the world's first affordable car. हमने नैनो तो हमारे कुछ साल पहले हमारे कंट्री में आया था, लेकिन हेनरी फोर्ड वाज अ पायनियर इन क्रिएटिंग अफोर्डेबल कार्स. एंड ही सेड, if the purpose of your business is to make money, then that is a very poor business. The purpose of your business should not be to make money. The purpose of your business should be to make a difference to the world. I come from insurance training background. So when we used to train our agents, we used to always tell them about this word commission. Because if they sold a policy, that is what they would get. They would get a commission.
but within the word commission there is a word which is called as mission. So the mission is hidden within the commission. So always put the mission before the commission. Always put the mission before the commission. Don't put the commission before the mission. Always put the mission before the commission. What is the mission of my talking to you today? Why do I do the training business? Why I am a speaker? Why I am an author? Because I want to help ordinary people become extraordinary through the power of fun-based learning. I hold a title called as Enter Trainer. उसका ट्रेडमार्क है मेरे पास, Enter Trainer. मतलब जो ट्रेनिंग एंटरटेनिंग बनाता है, और हम सभी को अपने इंटरेक्शंस को एंटरटेनिंग बनाना चाहिए, सभी को हमारे इंटरेक्शंस को अच्छा बनाना चाहिए, उसमें खुशी मिलनी चाहिए लोगों को. सो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपके जीवन में एक मिशन होना चाहिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके काम के लिए, जो आपको रोज सुबह उठने का प्रेरणा दे. कई लोगों को समझ में नहीं आते सुबह उठे मतलब इस जिंदगी को कैसे जिए, और जिंदगी बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी तो हम देख के रहे, हमारे पूरे माहौल में प्रॉब्लम है, लेकिन जिस इंसान के अंदर पर्पस है वो ये सारे प्रॉब्लम को आगे पार करके निकल सकता है. सो द फर्स्ट रिक्वेस्ट दैट आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स इज दैट हैव अ पर्पस टू योर बिजनेस. ऑल ग्रेट बिजनेसेस लाइक स्टारबक्स, लाइक एप्पल, लाइक Dr. Verghese Kurian, he created the Amul movement, the milk revolution. He created the Amul cooperative, which is based very close in Gujarat itself, in Anand. So उन्होंने वो revolution क्यों बनाया? Because from a milk deficient country, he converted India into a milk abundant country. That was the purpose of the business model. The purpose of the business model was not to make money for the Amul cooperative. Amul cooperative will make money anyway. When you do the mission, the commission will take care of itself. So the first thing is purpose. Second is passion. You have purpose, but if you do not carry that passion to execute your life, to execute your business model, और आप देखेंगे कि पैशन में भी ये एक शब्द आता कहां से है? The word passion comes from the word compassion. So जैसे कमीशन के अंदर मिशन है, वैसे कंपैशन के अंदर पैशन है. तो कंपैशन का मतलब मोहब्बत, कंपैशन का मतलब मोहब्बत, प्यार, एक जुनून अपने काम के लिए, एक पागलपन कि हम अपने काम को सबसे अधिक महत्व दे जीवन में. ये मैं सभी से कहता हूं कि अगर आपको अधिक से अधिक पैसा बनाना है जिंदगी में, तो आपको सबसे ज्यादा अपने काम से प्यार करना है, लोगों से थोड़ा कम करना है. क्योंकि जब आप लोगों से प्यार करते हैं तो पैसा खर्चा होता है, लेकिन जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो पैसे बनते हैं. राइट? सो जिंदगी में हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर बहुत जोश हो, हम जो भी काम करें जोश के साथ करें. और मैं कई लोगों को पूछता हूं कि अगर आप अपना पैसे को डबल करना चाहते हैं, अगर आप अपने पैसे को डबल करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? कई लोग बोलते हैं हमको डबल हार्डवर्क करना पड़ेगा. अगर मैं 8 घंटा काम कर रहा तो मुझे 16 घंटा काम करना पड़ेगा, मैं 10 घंटा काम करता हूँ 20 घंटा काम करना. वो तो कर नहीं सकते आप, क्योंकि अगर आप 18-20 घंटा काम करेंगे तो सोएंगे कब, परिवार को कब समय देंगे, अपना हेल्थ का ख्याल कैसे रखेंगे? सो यू डोंट हैव टू डबल योर हार्ड वर्क टू डबल योर इनकम, यू हैव टू डबल योर एंथुसियाज्म टू डबल योर इनकम. आप जितना एनर्जी के साथ आज काम कर रहे हैं, उस एनर्जी को आपको डबल करना है. जब उस एनर्जी को आप डबल करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है, आपका परफॉर्मेंस डबल हो जाता है, आपका इनकम हो सकता है डबल हो जाए. और मैंने एक देखा है दोस्तों, जिनके अंदर एक पर्पस होता है, एक पागलपन भी होता है. और पागलपन का मतलब वैसा वाला पागल नहीं, हम लोग थोड़े पागल होते हैं. एंड इंग्लिश वी से इट इज, वी कॉल इट एज मैड. व्हाट इज मैड? मैड इज नथिंग बट मेक ए डिफरेंस. We are mad because we want to make a difference. और हम लोग थोड़े अलग भी होते हैं.
मैंने भी अपना एक अच्छा कॉर्पोरेट करियर छोड़ा, अब मैं अपने बिजनेस में आया क्योंकि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। जो भी एंटरप्रेन्योर है वो कुछ अलग करना चाहता है, वो कुछ अपने तरीके से जिंदगी को जीना चाहता है, लेकिन उसको रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से भी जीना पड़ता है, वो प्रोसेस है, उस पर हम आएंगे। तो एक खूबसूरत शायरी है हम जैसे लोगों के लिए, तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, तारे स्टार्स की नुमाइश में, इन दर प्रेजेंस, तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, खलल इज डिस्टरबेंस, तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में ही निकलता है, चांद पागल है अंधेरे में ही निकलता है। तो हम लोग थोड़े पागल हैं, हम लोग अपने जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, हम लोग एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, बहुत बड़ी सोच होती है, एक बिजनेस खड़ा करने का सोच बहुत बड़ा सोच होता है, बहुत हिम्मत चाहिए उसके, एक प्रेरणा चाहिए जो अंदर से आती है, और इसमें बहुत सारी तकलीफें आएंगी, रुकावटें आएंगी, तो हमको उस सब चीजों को झेलते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने क्या बात किया कि पर्पस होना चाहिए आपके जीवन में। दूसरा हमने क्या बोला कि आपके जीवन में एक पैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। अब मेरे पास पर्पस भी है, मेरे पास पैशन भी है। अब तीसरा जो चीज इन दोनों को एक तार बनाकर एक बढ़िया चैनल देता है, उसको जोड़ के रखता है, और वो है प्रोसेस। नाउ यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी टैलेंटेड, they have a lot of energy, they have a lot of passion, but they are very restless, they are impatient, they drive the car very well, but they cannot wait at the red signal, they want to break the signal and go ahead. So you may have a lot of talent, you may have great ideas, you may have a lot of passion, your business may have a great purpose also, your life may have a great purpose also, but you don't have a process to it. You cannot succeed, you cannot succeed if you don't have a process. और आप देखेंगे कि हमारी गृहणियां जो है, हाउसवाइफ्स, होम मेकर्स, इनसे अच्छा प्रोसेस कोई फॉलो नहीं करता जीवन में। और लोग प्रोसेस को क्यों फॉलो नहीं करते ठीक से, वो क्योंकि वो क्योंकि वो प्रोसेस को बोरिंग समझते हैं। उनको लगता है रोज रोज वही वही काम क्या करते रहना, कुछ नया करते हैं, थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, फिर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप सोचिए, एक सर्जन है, उसको सर्जरी करनी है, हार्ट सर्जरी करनी है, कोई नया तरीके से सर्जरी करेगा रोज? हो सर्जरी तो एक ही तरीके का होता है। चाय बनाते हैं, रोज आप नया तरीके से चाय बनाएंगे, प्रोसेस तो वही है। तो आपका बिजनेस में भी अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपके लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है, सचिन तेंदुलकर के जैसे 25 साल तक क्रिकेट खेलने, किसी ने नहीं खेला उतना लंबा। अमिताभ बच्चन के जैसे 50 साल तक इस इंडस्ट्री में रहना है। मोहम्मद रफी साहब जैसे जो 40 साल 50 साल गाना गाते थे, उस तरीके से हमको अपना जिंदगी जीना है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, टाटा कंपनी आज 100 साल से भी ज्यादा चल रही है। तो ये ये इतना लंबा अपना करियर क्यों बना पाते हैं? वो इतना लंबा अपना करियर इसलिए बना पाते हैं क्योंकि वो प्रोसेस के तहत चलते हैं। तो आपके बिजनेस में सेल्स प्रोसेस होना चाहिए, आपके बिजनेस में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस होना चाहिए, एचआर प्रोसेस होना चाहिए, अप्रेजल प्रोसेस होना चाहिए, हर तरीके का प्रोसेस होना चाहिए। नाउ दिस होल वर्ल्ड इज फाइटिंग दिस कोविड-19, so there is a process to fight the COVID-19. The lockdown is a process, social distancing is a process, wearing a mask going out is a process, sanitizing is part of the process. If you violate this process, you are in big risk of attracting some problem for yourself and for people around you. So the third element is process. Now I have purpose, I have passion, and I have process. But as I start doing all this, बहुत सारी तकलीफें आती है। अब जैसे कितने बिजनेसेस को कोरोना की वजह से आज काफी तकलीफें आई है, काफी बिजनेसेस को नुकसान हो गया है, कई लोगों का नौकरी ऊपर नीचे है, हर किसी को कुछ ना कुछ तकलीफ है।
अब हम तकलीफ को दो तरीके से देख सकते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को अपने से बड़ा समझे या हम प्रॉब्लम से बड़ा बनने की कोशिश करें। तो मेरा जो रिसर्च कहता है, जो मैंने पढ़ा है और मैं बड़े वक्ताओं को सुना हूं और सक्सेसफुल लोगों से समझा हूं, वो यही है कि जो मैदान में टिका रहता है, छोड़ता नहीं है, जब बॉल आउट स्विंग होता रहता है, बाउंस खाता रहता है, बैट्समैन को वो सेट नहीं हो पाता, लेकिन वो बैट्समैन एंड ऑफ द डे सेंचुरी बना लेता है, वही बना सकता है जो वहां पे टिकता है। सो द फोर्थ एलिमेंट इज परसिस्टेंस। पर्पस, पैशन, प्रोसेस एंड परसिस्टेंस, ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैंने देखा है आपके पास बहुत टैलेंट होगा, बहुत स्किल भी होगा, बहुत इंटेलिजेंट भी आप होंगे, लेकिन अगर आप में टिकने की क्षमता नहीं है, अगर बॉल स्विंग हो रहा है तो आप छोड़ नहीं सकते या किसी तरह मैनेज नहीं कर सकते अपनी जिंदगी को, तो आप जल्दी आउट हो जाओगे। और आज तक ऐसा कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं हुआ जिसने फेलियर नहीं देखा। आज तक ऐसा कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं हुआ जिसको लाइफ में तकलीफें नहीं आई। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, शम्मी कपूर, आजकल काफी बातचीत चल रही है बॉलीवुड को लेकर, तो शम्मी कपूर का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। उनका वो तो खानदानी एक्टर थे, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर उनके पहले मजे हुए एक्टर्स थे, सेट थे, बड़े डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे। शम्मी कपूर को भी बैठे बैठे उनको सक्सेस की थाली, उनको सक्सेस का थाली परोसा नहीं गया था। He failed 17 to 18 films of his flop। और इस दौरान वो इतना मायूस हो गए थे, वो ये भी सोच रहे थे कि मैं कहीं कोई टी एस्टेट में मैनेजर की नौकरी मिल रही है, मैनेजर की नौकरी ले लूं और मैं निकल जाऊं। लेकिन वो कोशिश करते रहे और उस कोशिश के वजह से उनका पहला हिट पिक्चर निकला 1958 में, मेरे ख्याल से, तुमसा नहीं देखा। उसके बाद उन्होंने पलट के नहीं देखा और शम्मी कपूर बॉलीवुड के वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स ऑफ बॉलीवुड। आप इरफान खान का एग्जांपल ले लीजिए, 1995 96 में टीवी सीरियल में डेब्यू किया, आज 2020 तक, अनफॉर्चुनेटली इज नॉट अमंगस्ट अस नाउ, पर 2020 तक उन्होंने अपना एक एक इमेज, एक स्टेटस बना लिया था, लेकिन कितने साल लगे बनाने और कितनी तकलीफें आई उस बीच में, उस दौरान। सो आपको टिकना है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रोसेस को चेंज करना है करो, कोई टैक्टिक्स चेंज करना है करो, लेकिन अगर आपका पर्पस स्ट्रांग है और आपको क्लैरिटी है कि ये करना है, तो आपको तकलीफों के साथ झेलते झेलते जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे तूफानें आएगी, बहुत सारे तकलीफें आएगी, और वही इंसान जिंदगी में आगे बढ़ सकेगा जो उन तकलीफों को झेलकर वो आगे निकलता है। तो यहाँ पर एक खूबसूरत शायरी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, इसको जरूर याद रखना, ये मेरा बहुत ही फेवरेट शायरी है। आज बादलों ने साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। आज बादलों ने साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशिया बनाने की। तो हमें भी जिद है वहीं पर आशिया बनाने। तो अगर आपने ठान लिया है कि मुझे अपने जीवन के साथ ये काम करना है, ये मेरा जिंदगी का पर्पस है, मेरे को ये इस तरीके से आगे बढ़ना है और कुछ छोड़ ना जाना, कुछ छोड़ जाना है इस दुनिया के लिए, तो आपको परसिस्टेंट बनना है, रेजिलियंस बिल्ड करनी है आपके अंदर। ऑलवेज बिकम अ देना बैंक, डोंट बिकम अ लेना बैंक। जीवन का उद्देश्य होता है कुछ ना कुछ छोड़कर जाना आगे की पीढ़ी के लिए, ताकि उनको फायदा हो और वो अपना काम से फायदा ले और दुनिया में, इस दुनिया को और बेहतर बने। तो पर्पस, पैशन, प्रोसेस, परसिस्टेंस। अब ये परसिस्टेंस करते करते एक और एलिमेंट आ जाता है, वो है पेन, दर्द।
एक ही काम को लगातार वही वही पैशन के साथ करते रहना, फेल हो तभी भी एनर्जी के साथ काम करना, सक्सेसफुल हो तभी भी एनर्जी के साथ काम करना, उसी काम से मोहब्बत करना, बार बार वो काम को लगातार करते रहना, इसमें बहुत दर्द होता है। एंड ओनली पेन प्रोड्यूसर्स परफॉर्मेंस, ओनली पेन प्रोड्यूसर्स परफॉर्मेंस। हमारा जन्म ही पेन के वजह से हुआ है। लेबर पेन होता है तो हमारा जन्म होता है। हमारा जीवन का आधार ही पेन है। आज तक मुझे ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जो जन्म लेते ही रोया नहीं, या ऐसी कोई माँ नहीं मिली जो डिलीवरी के टाइम रोई नहीं, उसको तकलीफ नहीं हुआ। ये जीवन का आधार है दोस्तों। यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड unless you are ready to undergo a lot of pain. And I'm not just talking about physical pain, I'm talking about emotional pain, the mental pain of not being able to achieve what you want. But you keep trying, you keep trying. How much pain Shami Kapoor would have gone through? How much pain Irfan Khan would have gone through before he was able to establish himself? So every business takes time. And now इस जो दौर में हम लोग आज हैं, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, यहाँ पे वही इंसान जिंदगी में आगे बढ़ सकेगा जो वो दर्द का कैपेसिटी को बढ़ाता है और आप इस दर्द को सह सकते हैं। तो एक खूबसूरत बात शिव खेरा ने कहा है कि एथलीट्स प्रैक्टिस फॉर 15 years for 15 seconds of performance. Athletes practice for 15 years for 15 seconds of performance. What is the difference between a gold medalist and a silver medalist? It's only a difference of few seconds. But those few seconds, the effort that has gone into is maybe 5 years, 10 years, 15 years. So, दोस्तों, हमको जीवन में पेन लेना है। पेन के बिना हम और आप आगे बढ़ नहीं सकते। ये सेशन कर रहा हूं, ये अलग तरीके का पेन है, पैशन डालना है। आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे फिर भी ऐसे बात करना है जैसे आप मेरे सामने बैठे। आप भी टेक्नोलॉजी के द्वारा सुन रहे हैं, ये आदत नहीं है हमको, ये अलग किस्म का दर्द है। हम इस दर्द से गुजर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। सो अभी तक हमने क्या बात की? पर्पस, पैशन, परसिस्टेंस एंड प्रोसेस, परसिस्टेंस एंड पेन। सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं, वो है पीपल। You cannot grow your business, you cannot grow in your career, you cannot grow in your life if you do not know how to manage, deal, and work with and through people. Relationship building is the core value of existence. It is the core value of existence, relationship building. आपको रिश्ते बनाने, अपने आप से पहले एक रिश्ता बनाना। आज एक दुनिया में बड़ा प्रॉब्लम है, वो है मेंटल हेल्थ। लोग खुश नहीं है। कई लोगों के पास बहुत कुछ है तो भी खुश नहीं, क्योंकि अंदर का खालीपन है। तो आपको अपने आप से जुड़ना है, आपको अपने आप से जुड़ना है, ये बहुत जरूरी है। तो ये मेंटल वेलनेस का इशू क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप से जुड़ते नहीं है, हम अपने आप से मोहब्बत नहीं करते, अपने आप को गले नहीं लगाते। तो एक मजेदार शायरी है यहाँ पे, वो भी मैं सुना देता हूं, आपको मजा आएगा। किसी ने कहा है कि नहाना हो तो पानी में आ, किनारे में क्या रखा है। नहाना हो तो पानी में आ, किनारे में क्या रखा है। प्यार करना हो तो बाहों में आ, इशारों में क्या रखा है। प्यार करना हो तो बाहों में आ, इशारों में क्या रखा है। तो दोस्तों, अपने आप से इशारा मत कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, गले लगाइए अपने आप और अपने आप से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, खुश रहिए और आप जैसे हैं खुद को एक्सेप्ट कर लीजिए। आप में कुछ कमियां सभी में होती है, धीरे धीरे वो जितना हो सकता है आप उसको कमी पूरा करेंगे। एंड प्ले टू योर स्ट्रेंथ। One of the most important things in understanding people is to encourage them to play to their strength.
And as entrepreneurs, you will work with customers, you will work with employees, you will work with different kinds of people. So you should know to play to their strength, encourage their strength. एक बहुत ही लीडरशिप में इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम व्हिच ही नरेट्स. आप YouTube में भी देख सकते हैं. He had to launch a rocket and the rocket launch failed. So there was supposed to be a media conference after the failure of that mission. So he went and told his boss that I am going to address the press conference. His boss said, "You don't go. I will go and address the press conference." So when he went to address the press conference, everybody asked, who is responsible for the failure of this mission? So Satish Dhawan, I think, was the name of his boss, and Satish Dhawan ji said, I am responsible for the failure of this mission, but in the next few months we will be back और हम और बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया launch करेंगे. Few months later, that mission was relaunched. This time it was a very big success. Now Satish Dhawan asked APJ Abdul Kalam sir to address the press conference, and he took the back seat. So what is the lesson? When the leader failed, he took the blame. But when he succeeded, he gave the credit. And that is the sign of good leadership. That is the sign of people who know how to deal with people, who are compassionate about others. Today, we need maximum empathy and compassion because we're going through very, very difficult and extraordinary times, never seen before by humanity. So the sixth element is people. The seventh element is professionalism. What is professionalism? Punctuality is professionalism, one aspect of professionalism. Preparation is one aspect of professionalism. How well you prepare for whatever you are doing. So I will give you one more cricket example. I just love cricket and Bollywood, so I try to give many examples from there. Sachin Tendulkar scored a wonderful century in the year 1998 against Australia in Chennai. He scored 155 runs. और उस जमाने में शेन वॉर्न जो बॉलिंग करते थे, छठवें स्टंप पे बॉल गिरता था और पहले स्टंप को उड़ाता था. तो तेंदुलकर ने उसके स्पिन बॉलिंग को मास्टर किया अपने टैलेंट की वजह से नहीं, अपने प्रैक्टिस और प्रेपरेशन की वजह से. टैलेंट का कोई ज्यादा काम नहीं होता अगर आपके अंदर डिसिप्लिन ना हो. तो वो मद्रास क्रिकेट एकेडमी में गए और एक हफ्ते तक एक अंडर प्रिपेयर्ड पिच पे लक्ष्मण शिवरामकृष्णन के बॉलिंग पर राउंड द विकेट लक्ष्मण शिवरामकृष्णन उनको बॉलिंग करते थे. तेंदुलकर ने उस स्वीप शॉट को 7 दिन तक प्रैक्टिस किया. और when he went to the ground to play that innings, he had already practiced those shots so many times before. And you can see that innings on YouTube, and he kept sweeping and sweeping, and he scored 155 not out, which was the difference between India and Australia winning that test match. So that's the power of professionalism. It's the power of preparation. Amitabh Bachchan, he's famous for never coming late for any event, for any shooting in an industry which has very little discipline, where many stars, they behave like big stars and they don't bother about timing. They're keeping people waiting. So one of the most important things to be a great performer is to be a great professional, is to respect ethics, integrity. It is to have respect for other people. वो बोलते हैं ना, अगर आप छोटा हो तो बड़े आदमियों से सीखो, बड़ा हो तो छोटों को के साथ प्यार से व्यवहार करो. और बड़ा छोटा होता क्या है, बहुत रिलेटिव चीजें हैं. लेकिन कभी भी हमको इतना बड़ा नहीं समझना चाहिए कि हमारे अंदर अहंकार भर जाए, हमारे अंदर ईगो आ जाए. So we have covered purpose, passion, process, persistence, pain, people, and professionalism.
Let's come to the 8th point, which is predictability. और ये predictability क्या होता है? Predictability ये होता है कि अगर आज विराट कोहली बैटिंग करने जाता है तो लगभग सभी को एक चीज तो मालूम है कि ये इतनी आसानी से आउट होकर तो वापस नहीं आएगा। कोई एक आध दिन आउट हो जाएगा जल्दी, ठीक है, लेकिन ये 3-4 घंटे के पहले तो ये वापस नहीं आएगा बॉस। और ये 40-50 रन तो बना ही लेगा, मतलब सेंचुरी बनाएगा, लेकिन 40-50 रन तो बन ही जाएंगे। वो प्रेडिक्टेबिलिटी, वो एक ब्रांड है। जब हम कभी कभी कोई कंपनी का नाम लेते हैं तो हम उसका बहुत इज्जत से नाम लेते हैं, क्योंकि वो एक ब्रांड है, वो एक ट्रस्ट है हमको उस ब्रांड के ऊपर। वो प्रेडिक्टेबल होता है, हमको मालूम है कि यहाँ का नमक खरीदा तो ये कंपनी का नमक अच्छा ही होगा, ये कंपनी ने घर बनाया तो ये घर का स्टैंडर्ड अच्छा ही होगा। एक प्रेडिक्टेबिलिटी। तो एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ प्रोफेशनल, यू शुड बी प्रेडिक्टेबल। हाँ, अगर ये सेशन लेगा अच्छा ही लेगा, ये कोई बिजनेस खड़ा करेगा अच्छा ही करेगा, क्योंकि वो एक अंदर की बात होती है, आपके अंदर से आप किस तरीके से बने हुए हो। सो अपने आप को इतना एक्सलेंस में डालिए कि लोग आपके ऊपर नेचुरली भरोसा करने लगे। और एक्सेलेंस क्या है दोस्तों? एक्सेलेंस क्या है? एक छोटी सी कहानी बताता हूं। देयर वाज अ स्कल्प्टर, जो मूर्ति बनाता है, वो एक स्कल्प्टर एक मूर्ति बनाया था उसने, और उसका नाक ठीक कर रहा था। उसको मजा नहीं आ रहा था, उसको शार्पन कर रहा था। और उसका दोस्त देख रहा था कि ये क्या कर रहा है, तो उसके दोस्त ने पूछा क्या कर रहे हो तुम? बोला ये जो मूर्ति मैंने बनाई है इसका नाक ठीक नहीं है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर रहा हूं। बोलते तुम पगला गए हो, ये मंदिर का 22वां माला है और किसी को दिखेगा नहीं ये मूर्ति। तो वो शिल्पकार ने बोला कि किसी को नहीं दिखेगा मुझे पता है, लेकिन मैं जब रात को सोने जाऊंगा तो मुझे पता होगा कि ये काम मैंने ठीक से किया नहीं है। दैट इज एक्सलेंस। You are not excellent because you want to impress other people. You are excellent because that's your habit, that's a value that you have. Excellence is not an event, excellence is a habit. Excellence एक हैबिट होता है। जो काम करना है उसको अच्छे से ही करना है, उसको बढ़िया ही करना है, उसको जबरदस्त ही करना है और अपना बेस्ट देना है। उसके बाद जो परिणाम निकले वो ठीक। लेकिन हमने अपना बेस्ट नहीं दिया, you have not done your best, then that is not excellence. The result is not excellence. क्योंकि मैं बोलता हूं क्रिकेट में दोस्तों कि इनसाइड एज से भी 4 लग जाता है, उसमें बैट्समैन को कोई क्रेडिट नहीं होता है। भले उसके नाम पे रन दर्ज होते हैं, लेकिन अगले बॉल में बोल्ड भी हो सकता है। तो रिजल्ट अपनी जगह पे है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ एक्सेलेंस। कि रोज मैं जो काम करूं सही तरीके से। हमारी माँ, हमारी पत्नी रोज खाना बनाती है, वही खाना बनाना पड़ता है ना रोज। लगभग वही दाल बनता है, वही सब्जी बनती है, वही रोटी बनती है, वही चावल बनता है। बीच बीच में थोड़ा वैरायटी होता है, पर लगभग हम वही खाते हैं। और कितना भी आप कोको कोला फैंटा पी लो, लेकिन प्याज तो पानी से ही बुझेगा। कितना भी बढ़िया पिज्जा खा लो, गुजरात में जलेबी फाफड़ा खा लो। अब बहुत मिस कर रहा हूँ आजकल जलेबी फाफड़ा, गुजरात को बहुत मिस करता हूँ। अगला मौका मिलते ही आ जाऊंगा, हिरणमय साहब जरूर खिलाना। तो लेकिन भूख उससे मिटेगी नहीं। आपको भूख फाइनली किससे जाएगा? वो जाएगा रोटी दाल सब्जी से ही। तो ये फंडामेंटल्स है, जिंदगी के कुछ फंडामेंटल्स को हमको समझना पड़ता है, और हम भूल जाते हैं, बहुत आसानी से भूल जाते हैं। फंडामेंटल्स को पकड़ के रखें। तो ये ये लोग एक्सेलेंस प्रैक्टिस करते हैं। हमारी माँ, हमारी पत्नी बहुत एक्सेलेंट लोग हैं। हमारी दादी माँ क्या मतलब कहानियां सुनाती थी, खाना बनाती थी, घर को संभालती थी। दुनिया में सबसे बोरिंग काम गृहणियां करती है, कि घर को संभालती है और उनको ना कोई अवार्ड मिलता है, ना कोई अप्रिसिएशन मिलता है, फिर भी अपने दिल में एक जज्बा रख के वो रोज वही काम 40 साल, 50 साल, 60 साल करते हैं।
तो लाइफ में बोर नहीं होना, और जिसके पास एक जबरदस्त पर्पस है वो कभी बोर नहीं होता। और ये सब प्रिंसिपल्स आप प्रैक्टिस करेंगे। मैंने अपने 20-25 साल के एक्सपीरियंस से खोजा मैंने कि ऐसे कौन सी 10 चीजें करने से हमारे जीवन में लगातार परफॉर्मेंस बना रह सकता है, और ये मैं कोशिश करता हूं अपने जीवन में भी इसको प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप स्विमिंग क्लास में बैठ के आप थियरी तो समझ जाएंगे, लेकिन फाइनली आपको पानी में कूदना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आज का सेशन जब खत्म होगा तो आप ऐसी 2 बातों या 3 बातों को ध्यान में रखें जिसका आप इंप्लीमेंटेशन करेंगे। कौन सी 3 लर्निंग जो आपको आज मिल रही है, आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे। बिकॉज नोइंग इज नथिंग, डूइंग इज एवरीथिंग। जानने से कुछ नहीं होता। आप जिस चीज को जानते हैं, जब आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। मुझे वजन घटाना है, तो सिर्फ सोचने से तो वजन नहीं घटेगा। खाना कम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और वो सारे काम करने पड़ेंगे जो हमको पसंद नहीं है। इस चीज को ध्यान देना दोस्तों, लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो आपको पसंद नहीं हो। अगर आप वही काम करेंगे आपको जो पसंद है, तो आपको वही मिलेगा जो आपको पसंद नहीं है। लेकिन अगर वो सारे काम वो करने को तैयार है आप, जो आपको पसंद नहीं है लेकिन आपके लिए जरूरी है, तो फिर आपको वो सारा चीज मिल सकता है जो आपको पसंद है। लेकिन उसके लिए आपको वो काम करने पड़ेंगे जो आपको पसंद नहीं है। वजन घटाना है तो वो सारे काम करने पड़ेंगे जो आपको पसंद नहीं है, तो वजन घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा। तो किसी ने कितना खूबसूरत बात कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर मंजिल खूबसूरत, अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करो मंजिल कैसा है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करो मंजिल कैसा है। लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ता जैसा भी हो उसकी परवाह मत करना। अगर अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ता जैसा भी हो उसकी परवाह नहीं करना। लेकिन रास्ता खूबसूरत हो तो जरूर पता करो मंजिल कैसा है। तो दोस्तों, अभी तक हमने 8 चीजों की बातें की। अब 9th पॉइंट पे चलते हैं, वो है पोटेंशियल। आपको लगातार अपने ऊपर काम करना है, अपने पोटेंशियल को बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना। मैं हर बार सेशन करता हूं, कुछ नया सीखने को मिलता है, सिखाने को मिलता है, कुछ अपने शैली में बदलाव लाने का एक मौका मिल जाता है। हर एक प्रकार के अलग अलग ऑडियंसेस रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप परफेक्ट हो चुके हैं। हम और आप कभी भी जिंदगी में परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक बेहतरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, रोज अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट लाते रहे। अपने स्ट्रेंथ पे खेलना है और धीरे धीरे उसी स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग बनाते जाना है, स्ट्रांग बनाते, और अपने कमियों को मैनेज करना है। जिंदगी भर अपने कमियों को लेकर बैठ मत जाना, उसको सुधारने की कोशिश मत करना। पूरी तरह से आप सुधार भी नहीं पाओगे, उसको मैनेज करो। लेकिन खेलो किसके ऊपर? अपने स्ट्रेंथ के ऊपर। कम्युनिकेशन आपका स्ट्रेंथ है, उस पर खेलो। स्ट्रेटेजी आपका स्ट्रेंथ है, उस पर खेलो। प्रोसेस आपका स्ट्रेंथ है, उस पर ज्यादा खेलो। राइट? सो अपने आपका, और एक चीज को समझिएगा कि आपका पोटेंशियल अनलिमिटेड है। आपका पोटेंशियल तो अनलिमिटेड है, लेकिन बड़े बड़े सपने देखो लेकिन काम रोज छोटे छोटे करो। एग्जीक्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट, many people talk about strategy, great ideas. They have no meaning if you don't execute. I want to lose weight, it's a great idea, but you have to execute, right? I want to start a business, it's a great idea, but you have to start. और शुरुआत में हर चीज में मजा आता है, लेकिन जब उसमें तकलीफें आती है तो मजा घटने लगता है। लेकिन अगर आप जो काम कर रहे हैं तो 25 साल के बाद भी उठकर वो काम करने का उतना ही जोश आपके अंदर हो, इसका मतलब आप एक्सेलेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपको आपके काम से बहुत ही जबरदस्त मोहब्बत है। फैज अहमद फैज साहब ने कितनी खूबसूरत 4 लाइन लिखे हैं उन्होंने, कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जिन्होंने इश्क को काम समझा, या
अपने काम से आशिकी किया। वो लोग कितने खुशकिस्मत थे जिन्होंने इश्क को काम समझा या अपने काम से आशिकी किया। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। तो दोस्तों अपने आप से इश्क करो और अपने काम से इश्क करो, और आप देखो आपका पोटेंशियल कहां जाता है। और ऐसे बहुत आपको उदाहरण मिलेगा। आज अमिताभ बच्चन 50 साल के बाद भी कैमरा के सामने उनके अंदर उतना ही जोश है जैसे पहली बार वो कैमरा के सामने खड़े। 25 साल के क्रिकेट के बाद भी सचिन तेंदुलकर को रिटायर होने का दिल नहीं था, उनको आज भी खेलने का उतना ही जज्बा था। और हम जो इस प्रोफेशन में जो बिजनेस करते हैं, ये तो अनंत काल तक चल सकता है, हमारे बाद अगली पीढ़ी चला सकती है। तो कितना जबरदस्त हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, भगवान ने जो हमको प्लेटफॉर्म दिया है। प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपके पास कितना भी टैलेंट होगा, आपको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। और भारत अपने आप में एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म हमको दिया है कि हम अपने इस भारत देश के लिए कुछ करें, और भारत देश में जो ऊर्जा है उसके साथ हम आगे बढ़े। लास्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। तो हमने क्या कवर किया अभी तक? पर्पस से लेके पोटेंशियल तक। मैं एक बार फिर से बाद में समराइज करूंगा, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन का मतलब है रिजल्ट ओरिएंटेशन। हमने शुरुआत की थी परफॉर्मेंस, व्हाई परफॉर्मेंस। वी स्टार्टेड विद व्हाई परफॉर्मेंस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो लेट्स एंड विद व्हाई रिजल्ट ओरिएंटेशन इज इंपॉर्टेंट। देखिए, एक बैट्समैन के पास बहुत अच्छा टेक्निक है, रुक के खेल सकता है 4 घंटे 5 घंटे, लेकिन वो 5 घंटे के बाद 20 नॉट आउट है और आउट हो जाता है। तो उसमें टेक्निक तो अच्छा है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन भी चाहिए। आप बिना टेक्निक के रन नहीं बना सकते, लेकिन सिर्फ टेक्निक के साथ भी रन नहीं बना सकते। आपके अंदर एक मानसिकता होनी चाहिए कि मुझे परफॉर्म करना है, एक भूख होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए मुझे परफॉर्मेंस, मुझे परफॉर्म करना है, जो आपको विराट कोहली में दिखता है। एक भूख है उसके अंदर। आपके अंदर भी वो भूख होनी चाहिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने करियर को आगे बढ़ाने। So just the intention to perform is not enough. The process to perform is not enough. The hunger to perform is very important. एक जज्बा, एक रेस्टलेसनेस। लेकिन रेस्टलेसनेस का मतलब नहीं कि हम कुछ भी करें और परफॉर्मेंस लाए। गलत काम करके परफॉर्मेंस नहीं लाए, सही काम करके परफॉर्मेंस लाए तो वो टिकता है। सो रिजल्ट ओरिएंटेशन बहुत जरूरी। तो दोस्तों हमने 10 चीजों के बारे में बात की। द 10 पावर परफॉर्मेंस प्रिंसिपल, जो है पर्पस, पैशन, प्रोसेस, परसिस्टेंस, पेन, पीपल, प्रोफेशनलिज्म, प्रेडिक्टेबिलिटी, पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। ऐसी 10 चीजों के बारे में बात की। उसमें हमने और भी जोड़ा कि एक प्लेटफॉर्म का होना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। आज सचिन तेंदुलकर एक बड़े बल्लेबाज नहीं बन पाते अगर वो भारत में नहीं पैदा होते, वो प्लेटफॉर्म मिला हो। सही जगह पे रहना भी तो जरूरी होता है, या सही जगह को ढूंढ लेना जरूरी है। तो आप लोगों के पास आई हब का एक प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात आपको सपोर्ट दे रहा है, बढ़िया देश में रहते हैं हम लोग। हाँ, बहुत तकलीफें हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि सिर्फ ये नहीं सोचना है देश हमारे लिए क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं। हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है, अच्छा सिटीजन भी तो बनना है, अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, अच्छा प्रोफेशनल बनना है। तो हम क्या दे रहे हैं? देना बैंक बनना है दोस्तों, देना बैंक। तो ये डन। इन 10 चीजों के बारे में मैंने बात की। एक दो और शायरी बोल के मैं अपना वक्तव्य खत्म करूंगा, और उम्मीद है कि मैं आपके समक्ष आज कुछ वैल्यू प्रेजेंट कर सका, और आपके पास कोई सवाल जवाब होगा तो हम वो भी कर लेंगे। हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास नहीं करना, हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास नहीं करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तकदीर तो उनकी भी होती है ना जिनके हाथ नहीं होते। तो अपना किस्मत अपने मेहनत और अपने कर्म से बनाइए। कोई लक, किसी का सहारा, ठीक है, मिल गया तो अच्छी बात है,
लेकिन आपके अंदर इतना दम है, आप अपने बलबूते पे खड़ा रह सकते हैं बस। और मैंने एक बात की थी कि जिंदगी में खुश रहना है, दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनना है। अपने जो माँ बाप है अपने बच्चों के लिए प्रेरणा बने, बच्चे बोले मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। तो एक आखिर एक शायरी बोल के मैं अपना वक्तव्य खत्म करूं। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी को जियो इस अंदाज में, जिंदगी को जियो इस अंदाज में कि लोग आपको देखकर कहे कि वाह जिंदगी कितनी खूबसूरत, कि लोग आपको देखकर कहे कि वाह जिंदगी कितनी खूबसूरत। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। God bless all of you. I thank Kiranmay ji. I thank the entire team of HIAB. I thank Government of Gujarat. I thank Dharaji for all the organizing and bringing all of you together. God bless all of you and thank you very much. Thank you so much, sir. It was indeed a very motivating session, especially in the time of COVID, जहाँ हमारे startups काफी issues face कर रहे हैं. So we have a lot of questions coming up. Right. Everyone is very inspired by this session, and the first question is that in this time of COVID, how do you think these 10 principles apply? Yeah, so great question. So, like I said when I was speaking, that one of the most important elements right now is persistence. One of the most important elements is resilience. हम इसको हिंदी में धैर्य बोल सकते हैं, करेज बोल सकते हैं, और लालच कम करना है और काम ज्यादा करना है. The biggest lesson all of us have got today is कि जिंदगी चलाने के लिए बहुत पैसे नहीं चाहिए होते. अभी आप देखिए हम लोग घर पे बैठे काम तो कुछ ना कुछ बहुत लोगों का चल ही रहा है, खर्चे भी कम है और परिवार के साथ टाइम बिता रहे हैं. तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो ग्रेटिट्यूड की कमी थी जीवन में. तो हमारे अंदर वो ग्रेटिट्यूड लाना है, कृतज्ञ बनना है. वी हैव टू बिकम मोर ग्रेटफुल इन लाइफ एंड वी हैव टू थैंक God every day if we are healthy and we are fine. Because so many people are suffering on the roads, in the hospitals. It's a very crazy situation. And I still find a lot of people practice jealousy. They're still comparing that this person is doing better than me. बस आप जहां हो ना अच्छे हो यार, कोशिश करो और अच्छा कर सकते हो. तो ग्रेटिट्यूड लाओ. सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी आज कोविड ने जो हमको सिखाया है वो एक ही बात है, प्लीज हैव ग्रेटिट्यूड. प्लीज हैव ग्रेटिट्यूड. Secondly, be resilient, be persistent. हार नहीं मानना है. तकलीफें आएगी, उन तकलीफों के साथ आगे बढ़ो. और तीसरी बात, do good for society. Whatever way you can help people, help. Small ways. I am doing this session because it's a small contribution from my side to create some inspiration in people, some learning, some knowledge, some skill. So make those small contributions. And डोंट थिंक टू मच अहेड कि कल क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद मेरा बिजनेस कहां पहुंचेगा. आज में रहो. अभी ठीक है, आज खुश रहो. फिर कल में आओगे, कल में रहो. करो आगे की प्लानिंग. लेकिन आप देखिए जितने लोगों ने जो भी प्लान बनाया पिछले 5-6 महीने में, सब प्लान का बैंड बज गया. ऑल प्लान्स हैव गॉन आउट ऑफ द विंडो. सो डोंट थिंक टू मच अहेड. टेक इट एज इट कम्स. टेक इट एज इट कम्स. Yeah, so this is what I would like to share. So if you could throw some light, we have a question from Facebook Live regarding people management skills. Yeah, so it's a very big subject. People management is about understanding who you are first. What is your temperament? What is your personality? What are your choices? What are your preferences? What are your desires? And
I went to US in 2017, to get certified for a behavior science program. That was very life changing for me because I came to know my own style, the way I look at things, look at the world, the way I look at people. And so understanding that is very important. And we do workshops around that to help people understand themselves in a better way. क्योंकि जब आप खुद को समझेंगे तो then you are in a better position to understand others and help them also. क्योंकि हर इंसान अलग होता है. सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट कहां पर होता है? Where do people have a fight? That is because we are not ready to agree to disagree. We are not ready to say, okay, you are also right, I am also right. Not necessary that you are right and I am wrong, or I am right and you are wrong. There can be two rights, not necessarily one right and one wrong. So ये नजरिए की बात है, ये पर्सपेक्टिव है. So मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एक बेटा अपने बाप से पूछता है कि क्या, बड़ा हो गया होता है बेटा, तो अपने बाप से पूछता है कि क्या मैं जब प्रे कर रहा हूं, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, सिगरेट पी सकता हूं? उसके पिताजी बोलते हैं नहीं नहीं, प्रार्थना करने के टाइम तुम सिगरेट कैसे पी सकते हो? तो गलत बात है. प्रार्थना कर रहे हो तो प्रार्थना करो. तो बेटा और एक सवाल पूछता है, क्या मैं सिगरेट पीते पीते प्रार्थना कर सकता हूं? तो पिताजी बोलते हैं हाँ, सिगरेट पीते पीते प्रार्थना कर सकते हो. अब फर्क क्या है? बात तो वही है, लेकिन बात वही होने से कुछ नहीं होता, नजरिए में फर्क है. आप किस चीज को कैसा देखते हो उसमें फर्क है. So people management is also a lot to do with perspective. And today I find there is a big challenge in perspective in our society. We are not ready to accept that I can be wrong, and we are not ready to accept that somebody else can be right. And we are all the time trying. And conflicts are good if they are healthy. But the moment they become unhealthy, those conflicts are not good. So, a very big subject on people management. One of the very important aspects of people management is to learn leadership. And leadership is always a big challenge. I mean, it's never easy to be a leader. Whether you're a parent or you're a team manager or you're running a startup, you have to manage your people, whether you're a politician, whatever it is. I mean, leadership is never easy. And it's one of the most important skills that you need to pick up. Without being, and leadership is not just managing 10 people or 20 people. Leadership is how you manage yourself. It begins from there. So Sachin Tendulkar never made a great captain, but he was a great mentor for the team because he could manage himself very well. And that is a very, very important quality of good leadership. I mean, if you're not good at managing yourself, then how will you manage others? Yeah. So I hope that answers the question to some extent. Thank you so much, sir. We have a lot of questions, but since we're short of time, I'll take one last question from one of our startups, right, asking how can they build a brand using these principles? So before you build a, I got that. Thank you. Before you build a brand, you should build a purpose. So what's the purpose of your business? That is very important to understand. What's the mission? Do you want to make a difference to people's lives, or you just want to make money? People who only want to make money are worried about branding and other things. But if you want to make a difference, the biggest brand that you will get in your life is the goodwill of people. They will make you the brand. आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपके लोग आपको ब्रांड बनाएंगे, आपको कस्टमर्स आपको ब्रांड बनाएंगे. आपके लोग जो आपके साथ काम करते हैं, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार रखोगे, आपको ब्रांड बनाएंगे. ये फाउंडेशन. Then of course you can use social media tools. You can leverage LinkedIn. Being on LinkedIn is very important. Also understanding how to present yourself on LinkedIn is important. How to connect, learn networking. Learn to network with people, meet people. So it takes a long time to become a really good brand. It's not a shortcut, and you don't want that shortcut because आज आप एक साल के लिए बढ़िया ब्रांड बन जाओगे, फिर खत्म हो जाओगे. लेकिन आप देखिए,
जो 50 साल 60 साल 100 साल पुरानी कंपनियां हैं वो ऐसे तो नहीं खड़े हैं ना, और उनसे भी बड़े बड़े ब्रांड्स आए जो 5 साल चले 4 साल चले खत्म हो गए। सो लॉन्ग टर्म विजन रखिएगा, and when you work with a long term vision you will eventually be able to establish a brand. See, when you establish a brand it should be permanent. It may take time to get established, but it will become permanent once it is established. Yeah, hope I have been able to answer that.